بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ صفت انفتاح کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے، یہ جو صفت ہے یہ صفت اطباق کی ضد ہے۔ اگر آپ نے صفت اطباق کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، یاد کر لیا ہے، تو صفت انفتاح جو ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر صفت انفتاح کا لغوی معنی جانیں گے۔ تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ جدا رہنا یا کھلا رہنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یوں ہے کہ بیچ زبان کا تالو سے جدا رہنا۔ بیچ زبان کا تالو سے جدا رہنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے تجوید کے اندر۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ جو صفت انفتاح ہے یہ کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی انہیں ہم حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف منفتحہ۔ اب یہ کتنے حروف ہیں؟ ان کی جو کل تعداد ہے وہ 25 ہے۔ اب 25 حروف کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صفت اطباق کے اندر جو 4 حروف پڑھے ہیں، آپ نے جو وہ 4 حروف یاد کر لیے، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف وہاں بچ جاتے ہیں وہ آتے ہیں حروف منفتحہ کے اندر۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو صفت اطباق کے اندر 4 حروف آئے، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا۔ ان 4 کو چھوڑ کر جتنے بھی وہاں بچ جاتے ہیں، کل ملا کر 29 ہے۔ 29 میں سے ہم نے 4 کو نکال دیا، وہاں 25 بچے۔ تو یہ جو 25 حروف ہیں ان کو ہم حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم اس کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ جب بھی ہم حروف منفتحہ کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ زبان جو ہوتی ہے وہ تالو سے جدا رہتی ہے۔ یعنی تالو اور زبان کے درمیان میں کیا رہتا ہے؟ ڈسٹنس رہتا ہے، کشادگی رہتی ہے۔ اسی کو ہم انفتاح کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواز کا انحصار تالو اور زبان کے درمیان نہیں ہوتا۔ آواز کا انحصار تالو اور زبان کے درمیان نہیں ہوتا، یعنی وہاں پر گیپ رہتی ہے، کشادگی رہتی ہے، ڈسٹنس رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ 25 حروف یعنی حروف منفتحہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ادائیگی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ حروف منفتحہ کون سے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو 25 حروف ہیں ان کو ہم حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ اور ان 25 حروف کے اندر کچھ ایسے بھی حروف ہیں جن کے اندر صفت استعلا بھی پائی جاتی ہے اور صفت انفتاح بھی پائی جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب سب سے پہلے ہم یہاں پر الف کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے خالی ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر تالوں سے نہیں ملے گا۔ بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ نے زیادہ کچھ یاد نہیں رکھنا ہے، خالی یہ یاد رکھ لیجئے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر تالوں سے نہیں لگے گا، تو یہ 25 حروف ادا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم الف کو لے لیتے ہیں۔ جب بھی ہم الف کو پڑھتے ہیں، کیسے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ کیا زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالوں سے ملا؟ نہیں ملا، تو یہ حرف ادا ہو گیا۔ یا ہم با کو پڑھتے ہیں، جیسے باللہ باللہ، بین بین، قلوب قلوب۔ تو با کو پڑھتے وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہونٹ مل رہے ہیں، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالوں سے نہیں مل رہا، تو معلوم ہوا حروف منفتحہ میں سے ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تا جو ہے، تا کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تا الف زبر تا، یا ہم پڑھتے ہیں والتین والتین۔ تو تا کو جب ہم نے پڑھا تو زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالوں سے نہیں ملا۔ یا ہم تا کو پڑھتے ہیں ثمرات ثمرات۔ کیا اس میں زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالوں سے ملا؟ نہیں ملا، تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ ہے جیم۔ دیکھیں، جب بھی ہم جیم کو ادا کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یہ اوپر کے مقابل تالوں سے مل جاتا ہے، تب جا کے حرف جیم ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے انفتاح کے اندر پڑھا کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یہ تالوں سے نہیں ملتا، لیکن یہاں پر تو مل رہا ہے، پھر جیم کو حروف منفتحہ کے اندر کیوں لایا گیا؟
तो याद रखिए जीम के अंदर न सिफत इस्तिआला है ना ही सिफत इतबाक है, बल्कि इसके अंदर सिफत इन्फिताह है। अब आप बताएंगे यहां पर जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर लग रहा है, ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जीम का जो मखरज है वो यही है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी वस्ते जुबान जो होती है ये मुकाबिल के तालु से लग जाती है, तब जाके जीम अदा होता है। तो मालूम हुआ यहां पर ये जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर लगना ये मखरज के एतबार से है, सिफत के एतबार से नहीं है। क्लियर हो गया ना? इस चीज को याद रखना। कोई फिर यहां पर सवाल ना कर दे कि भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने मखारिज को भी लेकर चलना है, सिफात को भी लेकर चलना है। फिर इसके अंदर सिफत इन्फिताह है, अगर वो नहीं होगी तो ये हरफ जो है ना ये मोटा हो जाएगा और बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। हालांकि जीम जो है ना ये मोटा नहीं है, ना ये हरूफ मुस्तालिया में से है और ना ही हरूफ मुतबक्का में से है, बल्कि हरूफ मुस्तफिला में से है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बारीकी है, मोटाई नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हरफ कौफ है, कौफ को जब हम अदा करते हैं ना इसके अंदर तो मोटाई है क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिआला है, लेकिन सिफत इन्फिताह भी है, क्योंकि यहां पर कौफ को अदा करते वक्त क्या होता है कि जुबान का पिछला वाला हिस्सा ऊपर के नरम तालु से लगता है, ठीक है ना, बल्कि जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से नहीं लगता, कौन सा? पिछला वाला तालु लगता है, तब जाके कौफ अदा होता है। इसी तरीके से ख है, ख के अंदर भी सिफत इस्तिआला है और सिफत इन्फिताह है, क्योंकि ख की अदायगी हलक से है न कि जुबान के बीच वाले हिस्से से है। तो इन हरूफ को आपने इसी तरीके से अदा करना है और पहले पूरे तरीके से आपने कायदे को समझना है, कायदे को याद रखना है, जहन में रखना है, उसके बाद जो है हरूफ की मशक करनी है। तो इंशाल्लाह आपको ये खुद ब खुद फिर समझ में आ जाएगा। और एक चीज आप यहां पर फिर से याद रखें कि मखरज और सिफात जो है ना ये दोनों अलग चीजें हैं। मखरज से क्या होता है कि आप हरफ को अदा कर पाते हैं, और सिफात से क्या होता है आप उस हरफ की आवाज को पहचानते हैं। क्या उस आवाज के अंदर हमने पस्ती लानी है, शिद्दत लानी है, क्या सांस को रोके रखना है, क्या सांस को जाने देना है, ये आपको सिफात सिखाएंगी। मखारिज से आप सीखते हैं कि किस हरफ को किस तरीके से अदा करना है। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे ना तो मखरज भी सही होंगे, सिफात भी सही होंगी, तो आप हरूफ को सही तरीके से अदा कर पाएंगे और कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ पाएंगे और औरों को भी पढ़ा सकेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत इदलाक किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, हम पहले जानेंगे कि इसका लफ्जी माना क्या है। इसका जो लफ्जी माना है वो है फिसलना या फिसलाना, फिसलना या फिसलाना, ये इसका लफ्जी माना है। अब हम जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है किनारा। क्या है? किनारा। ये वो वाला समंदर वाला किनारा नहीं है, ये अभी आपको मालूम पड़ेगा। फिलहाल जो है आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि हरूफ का दांतों, जुबान या होंठों के किनारों से फिसल कर बसहूलत अदा होना, ये इसका इस्तिलाही माना है। ठीक है, इंशाअल्लाह इसको आप अभी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफत इदलाक है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुज़लक़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? हरूफ मुज़लक़ा। और इनकी जो तादाद है वो 6 है, यानी ये 6 हरूफ हैं जिनके अंदर ये सिफत पाई जाएगी। कौन कौन से? फा, रा, मीम, नून, लाम, बा। ये जो 6 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुज़लक़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिफत इज़लाक पाई जाती है। और इनका जो मजमुआ है वो है फर्रा मिन लुब्बिन, फर्रा मिन लुब्बिन। इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो बहुत ही ज्यादा अहम है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे तरीके से जो है हर एक पॉइंट को जहन में रखना है। इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम इन हरूफ को अदा करते हैं, यानी हरूफ मुज़लक़ा के 6 हरूफ को जब भी हम अदा करते हैं तो क्या होता है, ये जो हरूफ हैं ये अपने मखारिज से फिसल कर बसहूलत अदा होते हैं। अपने मखारिज से क्या होते हैं? फिसल कर बसहूलत अदा होते हैं। फिसल कर बसहूलत अदा होने से यहां पर क्या मुराद है, ये चीज आपने समझनी है। देखिए, जब भी हम इन 6 हरूफ को पढ़ते हैं ना तो इन हरूफ को पढ़ते वक्त क्या होता है कि इनके अंदर कोई जमाव पैदा नहीं होता, कोई मजबूती पैदा नहीं होती। जब भी हम इन हरूफ को पढ़ते हैं तो इनको हम सहूलत के साथ अदा करते हैं।
क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत इस्मात किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये जो सिफत इस्मात है ये सिफत इदलाक की जिद है। तो सबसे पहले हम यहां पर सिफत इस्मात का लफ्जी, लुगवी और इस्तिलाही माना जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लफ्जी माना की बात करते हैं। इसका जो लफ्जी माना है वो है खामोश करना या खामोश होना। खामोश करना या खामोश होना, ये इसका लफ्जी माना है। अब हम जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है रोकना। क्या है भाई? रोकना। अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि हरूफ का मजबूती और जमाव के साथ अदा होना। हरूफ का मजबूती और जमाव के साथ अदा होना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इस्मात कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफत है, सिफत इस्मात जो है, ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुस्मतह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुस्मतह कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो हरूफ मुस्मतह है इनकी तादाद कितनी है, ये कौन से हरूफ हैं। तो सिंपली याद रखिए, इनकी जो कुल तादाद है वो 23 है, यानी ये 23 हरूफ हैं जिनके अंदर सिफत इस्मात पाई जाती है। अब इन हरूफ को हम कैसे याद करेंगे? ये जो 23 हरूफ हैं, ये 23 हरूफ हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे? तो आसान तरीके से याद ऐसे कीजिएगा, अगर आपने पिछली वाली क्लास को देख लिया है जिसमें हमने सिफत इदलाक के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने 6 हरूफ पढ़े जिनको हम हरूफ मुज़लक़ह कहते हैं, यानी जिनका जो मजमुआ था वो था फर्र मिन लुब्बिन, यानी फा रा मीम नून लाम बा। इन 6 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ वहां पर बच जाते हैं उनके अंदर जो सिफत पाई जाएगी उसे हम सिफत इस्मात कहते हैं, या उन हरूफ को हम हरूफ मुस्मतह कहते हैं। तो इस तरीके से आपने उनको याद करना है। यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि ये जो हरूफ हैं, हरूफ मुस्मतह जो है, ये अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा होते हैं। ये अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा होते हैं। मजबूती और जमाव के साथ अदा होना, इसका क्या मतलब है? तो याद रखिए, ये जो 23 हरूफ हैं, ये जो 23 हरूफ हैं, ये फिसल कर अदा नहीं होते, बल्कि इनके अंदर जमाव है, इनके अंदर मजबूती है। क्लियर हो गया? और एक और चीज यहां पर आप याद रख लीजिए, ये जो सिफत इस्मात है इसको आपने अलग से इन हरूफ के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये जो सिफत है ये इनके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि जब भी आप इन 23 हरूफ को पढ़ते हैं, जब भी आप इनको मखरज के साथ अदा करते हैं, तो ये जो सिफत है ये खुद ब खुद इनके अंदर आ जाती है। तो ये जो सिफत है इसको आपने अलग से अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज भी आप एक्स्ट्रा यहां पर नोट कर लीजिए। अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ ता को ले लेते हैं। ता जो है ये हरूफ मुस्मतह में से है। देखिए, जब भी हम ता को पढ़ते हैं ना, इस हरफ के अंदर क्या है? इस हरफ के अंदर मजबूती है, जमाव है। जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे ता जबर ता ता ता, अब देखिए आप खुद यहां पर महसूस कीजिए कि हमारी जुबान जो है ना वो ऊपर लग रही है, यानी सनाया उलिया के जड़ों से लग रही है। तो यहां पर एक जमाव पैदा हो रहा है। ता ता, ये फिसलता नहीं है। अगर ये फिसलने लगा तो ये कैसे बनेगा? था 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 था। इसको फिसलाना नहीं है, बल्कि इसको जमाव के साथ, मजबूती के साथ अदा करना है। इसी को हम सिफत इस्मात कहते हैं। ता जबर ता ता, वत्तीन वत्तीनी वज़ैतून। तो ता को हम जमाव के साथ, मजबूती के साथ अदा करते हैं। उसके बाद है सा। सा जो है ये भी हरूफ मुस्मतह में से है। सा को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं सा 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 सा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहां पर जो है ना आवाज फिसल रही है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जुबान जो है ना, जुबान का जो सिर्रा रहता है वो सनाया उलिया के किनारों से लगता है, तब जाके आपको लगता है कि भाई ये फिसल रहा है। लेकिन यहां पर भी जमाव है, यहां पर भी मजबूती है एक किस्म की। तो ये हरफ जो है अदा हो रहा है। सा समारातिन समारातिन। या जीम को ले लेते हैं। जीम को जब भी हम अदा करते हैं, जैसे जीम जबर जा, अब देखिए इसके अंदर मजबूती है। जा जाला जा जाला जाला जाला, इसके अंदर फिसलन नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है? मजबूती है, जमाव है। हा है, देखिए हा हा हा, मजबूती के साथ, जमाव के साथ है।
یہ پھسلتا نہیں ہے کیونکہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے. خ ہے, خ, خ زبر خ, خ, خ. تو یہ حرف بھی جو ہے یہ بھی اس کے اندر بھی کیا ہے, اس کے اندر بھی جماؤ ہے, مضبوطی ہے. تو یہ جو باقی 23 حروف ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ جو صفت ہے اس کو آپ نے الگ سے اپلائی نہیں کرنا ہے, بلکہ جب بھی آپ ان حروف کو پڑھتے ہیں مخرج کے ساتھ, پراپر مخرج کے ساتھ جب ان کو پڑھیں گے نا آپ, تو خود بخود جو ہے ان کے اندر یہ صفت آ جائے گی. آپ نے الگ سے کوئی زحمت نہیں کرنی ہے کہ آپ ان کے اوپر اس کو اپلائی کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو باقی جو حروف ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے تاکہ آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.